everyone, welcome back to my channel UGC NET and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And जिनका भी एग्जाम हो गया है, hope उनका एग्जाम बहुत अच्छे से गया है. And whoever is having your exam upcoming, all the very best. You get your NET and JRF with your very first attempt. All my best wishes with you. And as you know, here we discuss about paper 1. But today I have started something for paper 2 commerce. On a special request, I have brought the video on business finance, जो हमारा यूनिट है पेपर 2 कॉमर्स का. So if your paper 2 is commerce or management, then this video is going to help you a lot. You will learn about capital structure theories after this video. Capital structure theories is the very important topic of business finance, जिसमें 99% chances है that you will definitely get one question, two questions or maybe more than that. That capital structure theory से, क्योंकि every year you will get a question from capital structure theory in commerce. So let's understand about capital structure theories in this video. Before we proceed, if you are new to my channel, then please subscribe to it. If you are preparing for UGC NET and JRF, then all my videos and like my channel is gonna help you a lot. That's my guarantee. So myself Jayanti, I have cracked UGC NET and JRF in commerce and working as a UGC NET faculty and also a research scholar. So please subscribe to my channel, and now let's go forward with the first slide. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बिफोर वी टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए. सो फाइनेंस मींस व्हेनेवर वी रन अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड मनी टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. सो फाइनेंस जो है उससे कैसे हम फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम 3 टाइप्स के डिसीजन लेते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज दिस. कोई एक एक्टिविटी दी हुई होगी एंड आपको पूछा जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फाइनेंसिंग डिसीजन है या डिविडेंड डिसीजन है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज समथिंग वेयर वी डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट द फाइनेंस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, विच इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो अगर आपको ये 2 चीजें दिखे, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन यू विल कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्लियर? कैपिटल बजटिंग आपका लॉन्ग टर्म हो गया और वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म हो गया. फिर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन में वो सारे डिसीजन आएंगे जिसमें हम फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, डेट कैपिटल होगा या इक्विटी कैपिटल होगा, ज्यादा हम बोरोड मनी यूज करेंगे या इक्विटी कैपिटल, यानी कैसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैसा हमारा कौन सा रिसोर्सेस होंगे हमारे फाइनेंस के, दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन. हियर कम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, यानी जो भी आपका कैपिटल है उसका कॉस्ट आपको क्या पड़ रहा है, इज इट है लाइक प्रॉफिटेबल और नॉट. देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, लाइक how much debt capital and how much equity capital you are going to use. And leverage means the borrowed money, debt which is used to invest further for higher returns. अगर आप borrowed money को use कर रहे हैं, debt को use कर रहे हैं invest करने के लिए to earn higher returns, then it is your leverage. So ये भी आपका financing decision है. Dividend decision क्या हो जाएगा? How much dividend you are going to pay to the shareholders so that they are also satisfied and you are also in the profitable like situation. Then retained earnings. Retained earnings क्या है हमारी? Whatever profit you are earning, whatever earnings are there, after paying all the expenses and after paying the dividend of shareholders, whatever is left with your company or with you, that is your retained earnings. यानी सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, सारे डिविडेंड पे करने के बाद अगर हमारा बच जाता है अर्निंग्स और प्रॉफिट, दैट इज आवर रिटेन अर्निंग्स विच वी कैन इन्वेस्ट फर्दर. तो ये दोनों आपके हो गए डिविडेंड डिसीजन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हम पढ़ेंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जैसा कि मैंने कहा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इसमें 2 टाइप के थ्योरीज होते हैं बेसिकली, रेलेवेंस थ्योरीज एंड इररेलेवेंस थ्योरीज. ओके, तो रेलेवेंस थ्योरीज एंड इररेलेवेंस थ्योरीज होते हैं. Relevance theories means where we think that capital structure affects the value of firm, यानी फर्म की जो वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हो रही है, रिलेटेड है, दैट इज योर रेलेवेंस थ्योरी. इररेलेवेंस थ्योरी मीन्स when the value of the firm is not affected or related to the capital structure, like whatever capital we use, debt capital or equity capital, doesn't matter, the ratio doesn't matter, that is your irrelevant theories. एंड एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, इट इज लाइक इन स्टेटमेंट फॉर्म और assumption फॉर्म्स, लाइक
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और assumption इज ट्रू रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर थ्योरी। तो आपको सारे थ्योरीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए एंड वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। रेलेवेंट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर affects the value of firm. Irrelevant means capital structure doesn't affect the value of firm. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कितना डेट आप यूज कर रहे हैं और कितना इक्विटी यूज कर रहे हैं, यानी बोरोड मनी हम कितना यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा हो गया। तो रेलेवेंट में दो होते हैं, नेट इनकम थ्योरी विच इज ऑल्सो गिवन एज NI इन शॉर्ट फॉर्म, और ट्रेडिशनल थ्योरी। इररेलेवेंट में दो हो गए, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी विच इज NOI एंड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच विच इज MM अप्रोच। तो ये चारों थ्योरीज हैं जिनके बारे में मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन योर एग्जाम फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट थ्योरी एंड टॉक अबाउट वन बाय वन। नेट इनकम अप्रोच जो हमारा NI थ्योरी है फर्स्ट, वो क्या बोलता है, मैंने सारे जो थ्योरीज है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं बुलेटेड पॉइंट्स में सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन। अगेन आई विल टेल यू फोकस ऑन द कीवर्ड्स because everything is not possible to be remembered while we are in the exam hall. तो हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, so we try to create some mnemonics or try to create some keywords which we can like retain and which we can remember when we are in the exam hall, right? तो नेट इनकम अप्रोच में मेन पॉइंट्स क्या है, दिस इज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। नाम आपको याद रखना है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन अगर आए तो नाम भी पूछ देता है, तो डेविड ड्यूरेंट नाम याद रखना है। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इट इज रेलेवेंट थ्योरी। रेलेवेंट मीन्स नेट इनकम थ्योरी, नेट इनकम अप्रोच ये मानता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें डेट ज्यादा है या इक्विटी ज्यादा है, ये स्ट्रक्चर आपके फर्म के वैल्यू को अफेक्ट करता है। सो दिस इज अ रिलेवेंट थ्योरी। ओके, नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म, दैट मीन्स इट इज रिलेवेंट। तो क्या रिलेशन है, इट एज्यूम्स दैट increase the total value of firm by lowering the cost of capital. So it thinks अगर आप cost of capital को कम करेंगे तो आपका firm का value increase होगा, और it also assumes that cost of debt is less than cost of equity. These all points you need to remember, which is net income approach, like which is about net income approach. ये क्या मानता है कि cost of debt is less than cost of equity, यानी equity capital कलेक्ट करने में हमें जितना कॉस्ट होगा उससे कम कॉस्ट होगा हमें डेट कैपिटल यानी उधार से पैसा कलेक्ट करने में हमें कम कॉस्ट लगेगा, ऐसा इसका एजम्पशन है। ओके, एंड हियर द थ्योरी सेज एज द अमाउंट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, weighted average cost of capital decreases which leads to increase the total value of firm. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, नेट इनकम अप्रोच जो है, नेट इनकम थ्योरी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, वो क्या बताती है, इट अज्यूम्स दैट इफ यू इंक्रीज द डेट, अगर आप डेट कैपिटल को बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द डेट देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस। अगर आप डेट को बढ़ाते हैं तो आपका कॉस्ट कम होते जाता है, और कॉस्ट कम होने की वजह से आपका वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो बढ़ते जाता है। दैट इज योर समरी ऑफ नेट इनकम अप्रोच। क्या समरी है, डेट हम ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट कम होते जाएगा, कॉस्ट कम होते जाएगा तो फर्म की वैल्यू ज्यादा होते जाएगी। दैट इज योर नेट इनकम अप्रोच। यानी ये मानता है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Very important assumptions you need to remember. I have given the graph also. If you like understand, then it becomes like more helpful for you. तो इसमें क्या है, जैसा आप देख रहे हैं, KE means cost of equity, KO means overall cost of the capital, KD means cost of debt. तो इसमें क्या दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट, अगर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो लेस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, नीचे है ना, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा है टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते जा रहा है, इससे हमारा फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है उसमें आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट इट इज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट, सेकंड इट इज अ रेलेवेंट थ्योरी, दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर affects the value of firm, third it assumes that cost of debt is less than cost of equity, fourth the main point is when we increase the debt capital overall cost of capital is decreased and value of firm gets increased। ये हमारा समरी हो गया नेट इनकम अप्रोच का।
So hope you understood what is net income approach. अगर आपको clear हो गया then very good. If you are still a bit confused, maybe you are learning it first time, then you can replay and rewatch the same like paragraph again. You can replay the video and understand more. Let's come to the next. Net operating income approach, NOI approach. ये क्या है? This is also given by David Durant. ये भी David Durant के द्वारा दिया गया है. ये आपका irrelevant theory है. Irrelevant theory means capital structure doesn't affect the value of the firm. The total value of the firm will not be affected by the composition of capital structure. ये irrelevant है. यानी जितना भी डेट यूज करें, जितना भी इक्विटी यूज करें, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रेशियो है, वो हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. क्लियर? Irrelevant theory, the very important point. Next, the most significant assumption is that the overall cost of capital is constant irrespective of degree of leverage. यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कम डेट यूज करें या ज्यादा डेट यूज करें, बोरोड मनी आप कम यूज करें या ज्यादा यूज करें, दैट डज नॉट अफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस अप्रोच. क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है वेदर यू यूज मोर डेट, लेस डेट, मोर इक्विटी, लेस इक्विटी, डजंट मैटर. क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल remains constant. Next is the increased risk to shareholders from more debt raises the cost of equity which nullifies the advantage of cheaper debt. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप समझे. नेट इनकम अप्रोच में क्या था? नेट इनकम अप्रोच में ये था कि अगर हम ज्यादा डेट यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, जिससे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन इसमें ये माना जाता है कि डेट अगर हम ज्यादा यूज करें भले तो उससे भले ही हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा, बट इक्विटी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो हाई डेट, दैट मीन्स हाई रिस्क. ज्यादा डेट, ज्यादा उधार मनी, ज्यादा बोरोड मनी, दैट मीन्स ज्यादा रिस्क. सो ज्यादा रिस्क के कारण जो शेयर होल्डर्स का है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो भी ज्यादा हो जाएगा. सो इट एज्यूम्स दैट मोर डेट, मोर रिस्क, मोर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट डिक्रीज बाय मोर डेट. ये आपका मानता है कि जितना ज्यादा डेट यूज करेंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी. तो जो हमारा कम हुआ था कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट की वजह से, वो अभी ज्यादा हो जाएगा इक्विटी की वजह से, तो वो नलीफाई हो जाएगा. तो आपको सिर्फ सिंपल वर्ड्स में ये समझना है कि जितना भी आप डेट यूज करें उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होगा, जितना भी आप इक्विटी यूज करें उससे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट अज्यूम्स दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट. Now every debt equity mix is equally good and there is no optimal capital structure. इसमें माना जाता है कि किसी भी रेशियो में, प्रोपोर्शन में आप इक्विटी और डेट को यूज करें, doesn't matter and doesn't affect the value of firm. It remains constant and all the proportion of debt and equity is good. There is nothing like optimal capital structure. Okay, so these are the main points of net operating income approach. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भले ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो, लेकिन जैसे जैसे हम डेट ज्यादा यूज करते हैं वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जाती है ड्यू टू हायर रिस्क. तो ये दोनों बढ़ जाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है. दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. मेन पॉइंट्स लेट्स समराइज. फर्स्ट, गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट. सेकंड, the value of firm is not affected by the capital structure, like how much debt and how much equity we are using doesn't affect the value of firm. Third, overall cost of capital remains constant. Fourth, all the like proportion, ratio, debt, equity, whatever ratio you are using, they all are equal. There is no optimal capital structure. So if you find net operating income approach, you have to focus on these keywords. अगर वहां लिखा रहे कि देर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, सो दैट इज ट्रू, क्योंकि इसमें सारे ही जो प्रपोर्शन है, यानी कितना भी आप डेट यूज करें, कितना भी इक्विटी यूज करें, उसको सेम ही माना जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इट इज इररेलेवेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड. इफ यू डिडंट देन यू कैन अगेन रीप्ले एज आई टोल्ड यू. यू कैन रीप्ले, फिर से देखें, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ट्रेडिशनल अप्रोच. ये ट्रेडिशनल अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है? बाय एजरा सोलोमन. नाम याद रखना है. सेकेंड, इट इज अ मिडवे. मिडवे मीन्स ये बीच में है. ये NI और NOI अप्रोच का बीच वाला है, यानी ये दोनों को अज्यूम करता है. इट अज्यूम्स द NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच बोथ. सो इट इज अ मिडवे, बीच का रास्ता.
इसमें क्या माना जाता है? It thinks that debt equity mix will cause the market value of firm to rise and the cost of capital to decline to a limit. मतलब इसमें ये माना जाता है कि डेट अगर हम ज्यादा यूज करें, डेट इक्विटी का रेशियो हम चेंज करें, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, बट टू एन एक्सटेंट, टू अ लिमिट, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो काम करेगा, वो अफेक्ट करेगा। उसके बाद जब हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? ये मिक्सचर हो गया दोनों का, एनआई और एनओआई का। पहले डेट ज्यादा यूज होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, बट व्हेन यू रीच टू अ लिमिट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद आप जितना भी डेट और इक्विटी यूज करें, उससे आपका वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये आपका दोनों का मिक्सचर है, विच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, so after attaining the optimum level, any additional debt will cause to decrease the market value to increase the cost of capital. तो एक लिमिट तक इसमें वो अफेक्ट करेगा, उसके बाद वो वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये आपका दोनों का मिक्सचर है। दिस अप्रोच, लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अदर थ्योरीज, बट स्टिल यू नीड टू नो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट, मोदी गिलानी मिलर थ्योरी और अप्रोच, विच इज एमएम अप्रोच। ये क्या है? मोदी अप्रोच क्या है? इट इज गिवन बाय मेट्रॉन मिलर एंड फ्रैंको मोदी गिलानी, नाम याद रखना है। इसमें क्या है? ये भी एक इररेलेवेंट थ्योरी है। इररेलेवेंट मींस इट अज्यूम्स दैट फर्म्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर अर्निंग्स एंड रिस्क ऑफ इट्स एसेट्स, नॉट ऑन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर की एक इररेलेवेंट थ्योरी है, जो बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म से कोई रिलेशन नहीं है। जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो उसके फ्यूचर अर्निंग से, उसके रिस्क फैक्टर से अफेक्टेड होती है, रेदर देन कैपिटल के स्ट्रक्चर से। कितना हम डेट यूज कर रहे हैं, कितना हम इक्विटी यूज कर रहे हैं, उससे वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड नहीं होती है अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच। तो ये भी आपका इररेलेवेंट थ्योरी है। इसमें दो प्रपोजिशन है। फर्स्ट प्रपोजिशन इज इन अ परफेक्ट मार्केट विथ नो टैक्सेस, अगर वहां कोई टैक्स नहीं है तो वैल्यू ऑफ अ लिवर्ड फर्म मीन्स विथ डेट। लिवर्ड फर्म मीन्स द फर्म विच यूजेस डेट, बोरोड मनी, उधार मनी जो यूज करती है, एंड द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड मनी जो डेट यूज नहीं करती है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी वी एल इज इक्वल टू वी यू। लेवर्ड फॉर्म एंड अनलेवरेज्ड फॉर्म, यानी लेवरेज हम यूज करें या ना करें, वैल्यू बराबर ही रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन 1। Proposition 2 says when tax information is available, then financial leverage can increase a firm's value and reduce its average cost of capital. अगर टैक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हो सकता है कि फाइनेंशियल लिवरेज यानी बोरोड मनी यानी डेट इंक्रीज करने पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाएगा। ये आपका सेकेंड प्रपोजिशन है। तो आपको मोदर गिलानी मिलिन अप्रोच में याद रखना है, गिवन बाय मेट्रॉन मिलर एंड फ्रैंको मोदिगिलानी। सेकेंड, इट इज एन इररेलेवेंट थ्योरी क्योंकि इट अज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय द फ्यूचर अर्निंग्स एंड रिस्क, नॉट बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। दो प्रपोजिशन है अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन 1, लेवर्ड फर्म यानी जो फर्म डेट यूज करती है, एंड अनलेवरेज फर्म जो फर्म डेट यूज नहीं करती है, दोनों की वैल्यू बराबर होता है। प्रपोजिशन 2 थिंक्स दैट अगर टैक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, then financial leverage can increase your value of firm by reducing the cost। तो ये आपका मेन पॉइंट है एमएम अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट साइड में मैंने इसका एक ग्राफ दिया हुआ है, विच सेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, घट रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बट उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स इररेलेवेंट है। क्लियर? सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट the important capital structure theories and the main points in like short way, because we don't have enough time to have a detailed discussion of everything as your exams are going on already। तो अगर आपको समझ में आया हो, then please like and comment if you find it helpful, that you can like give your suggestion and any remarks in the comment box. I would love to see your comments, and also like and share if you find it helpful. Thank you so much for watching the video. Hope it was helpful and informative for you, and we will be meeting again with a very informative video very soon. Thank you so much. Bye bye.